Yeah, hello everyone. Good evening, Janki. My name is Karan Kumar, and I represent San Mateo Colleges of Silicon Valley. That's based in California, United States of America, USA. So, can you hear me, guys? Am I audible? If someone can just comment, or I have to raise my volume. I'm just checking, so just give me a second. I'm sorry that there is a dark background. Unfortunately, I have to turn on my AC, and obviously that's the reason why I'm sitting inside my room. So I'm really sorry for that. So just in case you are unable to see me, do let me know. Okay. Otherwise, I have to change the location. Okay. So I'll start this session now. This session will be of roughly 35 to 45 minutes, wherein I would be talking about my college, what we offer, and what type of students can apply for our programs. What are the entry requirements? Where is the location? What are the benefits of getting into a college? What you can do while you are studying at our campus? What are the post-study work right options for the students? Uh, Plus, when you can apply for our programs, what are admission deadlines? So I'll start with the session now, and we are based in Silicon Valley. We are a two-year public college system. Now, in US, when you want to do your bachelor's, either you can straight away start your bachelor's in a four-year college or a university, or you can actually you can complete your bachelor's via a community college, wherein you can do your first 2 years at a community college, and then you can transfer into a university or a college or a four-year college and complete your last 2 years. Uh, I would be using Hindi as well because you might have few questions, and if in case you're not comfortable in English, so I just want to mix my discussion with both Hindi and English. So as I said that in the US you can complete your bachelor's in the 4 years. चाहें तो आप 2 साल की बैचलर 2 साल पहले एसोसिएट डिग्री करके कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं, एंड देन वहाँ पे जो भी आप क्रेडिट्स अर्न करते हैं, वट एवर क्रेडिट्स और यूनिट्स दैट यू अर्न in your first 2 years, then you can transfer all your credits to a university in the third and the fourth year. So that's what US education system is. वहाँ पे बैचलर्स 4 साल की होती है, अनलाइक इंडिया, अपार्ट फ्रॉम योर फार्मेसी और योर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स वेयर योर बैचलर्स ऑफ 4 years. यहाँ पे ज़्यादातर प्रोग्राम्स 3 साल के होते हैं, बट वहाँ पे यूएस और कनाडा में आपकी बैचलर्स डिग्री 4 साल की होती है, जहाँ पे आप 2 साल चाहें तो एक कम्युनिटी कॉलेज में कर सकते हैं और लास्ट के 2 साल आप एक यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं. ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको यूएस और कनाडा एजुकेशन सिस्टम में मिलती है, जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है इस वक्त. The tagline of this session is that you can actually study abroad, and it's no longer a dream. You can actually realize your dream with not enough challenges, I would say. And in the community colleges especially, the entry requirements are quite flexible. First, I'll discuss about where we are located. So we are located in the high-tech capital of US, which is Silicon Valley, जहाँ पे आपकी मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं. अगर आप बात करें यूट्यूब की बात करें, या फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, पिक्सार जो एनिमेशन रिलेटेड कंपनी है, एंड देन आपके गूगल हो गया, फेसबुक, सेल्स फोर्स, ओरेकल, प्ले स्टेशन. ज़्यादातर बच्चे जो आज की डेट में PS4 या PS5 जो अब लॉन्च हो गया है, जो होने वाला है, वहाँ पे जो गेम्स खेलते हैं, तो वो उसका हेड ऑफिस, सारे हेड ऑफिस आपके सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है. तो एडवांटेज ये है आपको हमारे कॉलेज में पढ़ाई करने का कि आप जब यहाँ से पढ़ाई करके निकलते हैं, जब व्हेन यू कंप्लीट योर बैचलर्स डिग्री, यू एक्चुअली get into you work in all these leading multinational companies. So you get an opportunity to work in all these companies.
एंड एज़ फार एज अ पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स का कंसर्न अगर हम बात करें, तो जब आप अपनी बैचलर्स डिग्री किसी स्टेम प्रोग्राम में कंप्लीट करते हैं, स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जब आप स्टेम प्रोग्राम में अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 साल का स्टे बैक ऑप्शन मिलता है। विज़ावी अगर आप नॉन स्टेम प्रोग्राम के लिए पढ़ाई करते हैं, जैसे कि अगर आप साइकोलॉजी एज ए मेजर्स करते हैं, या ह्यूमैनिटीज़ हो गया, या आप एनिमेशन से रिलेटेड, या कोई फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई भी आप प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टे बैक ऑप्शन 1 साल का मिलता है, जिसको हम OPT कहते हैं। तो अगर आप स्टेम प्रोग्राम के लिए जाते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हेल्थ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस प्रोग्राम्स, तो आपको 3 साल का स्टे बैक मिलता है। विज़ावी अगर आप कोई और प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे आपको 1 साल का प्रोग्राम मिलता है। जो हमारा ग्रुप है सैन मैथ्यू कॉलेजेस ऑफ सिलिकॉन वैली, ये 3 colleges, we own 3 colleges there. So the district, the San Mateo district owns 3 colleges there. Our colleges name are Skyline College, College of San Mateo, and Kanyara College. तो ये हमारे 3 colleges हैं. I'll repeat it. It's Skyline College, College of San Mateo, and Kanyara College. ये 3 colleges हैं जहाँ पे हमारी स्टूडेंट पॉपुलेशन जो है वो रफली 28,000 स्टूडेंट्स हैं इन टोटल इन ऑल दीज 3 colleges. स्काईलाइन कॉलेज में रफली आपके 9,500 स्टूडेंट्स हैं. कॉलेज ऑफ सैन मैथ्यू में आपके रफली 10,500 स्टूडेंट्स हैं, और कनियारा कॉलेज में रफली आपके 7,000 स्टूडेंट्स हैं. सो आपकी जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो 27-28,000 है वहाँ पे, जहाँ पे बच्चे एसोसिएट डिग्रीज़ करते हैं. एसोसिएट डिग्रीज एज आई सेड आर द फर्स्ट 2 years ऑफ योर बैचलर्स. तो आप पहले 2 साल एसोसिएट डिग्री करेंगे, जहाँ पे आप 60 credits. In the US you have to complete 120 credits in order to earn your bachelor's degree. तो on an average students 30 units 30 credits पढ़ते हैं 1 साल में. तो जब आप 2 साल में 60 credits आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एसोसिएट डिग्री अर्न होगी, और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 3rd और 4th year में. The other advantage of studying in our group is in any of our 3 colleges is that we are partner with 149 universities in the US. US में करीबन 5,000 academic institutions हैं, जिसमें आपके 4-year colleges आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और 2-year community colleges आते हैं. तो जब आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो हमारे जो वहाँ पे एडवाइज़र्स हैं, एक्सपर्ट ट्रांसफ़र एडवाइज़र्स हैं, since we have an agreement with 148 universities thereon, so आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र मिलता है करने को, अपॉर्चुनिटी मिलती है 148 यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं. Now the advantage is that you don't have to worry on your academics at the entry point, which means that जब आप इंडिया से अपनी एडमिशन लेते हैं तो आपको ज़्यादा परसेंटेज क्राइटेरिया पे अपना इतना फोकस, इन द सेंस आपको इतना डिपेंड नहीं करना पड़ता है. अगर आपके 60% भी हैं 12th में, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी एवरी स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 80-90%, बिकॉज कई बार US जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं बैचलर्स के लिए, वो बीच में अपनी एडमिशन छोड़ देते हैं. उनको लगता है कि अगर मेरे 65-70% आएंगे तो मैं US अप्लाई नहीं कर सकता, मैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में, हाई रैंक यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. बट दैट इज़ नॉट द केस. कम्युनिटी कॉलेजेस का एडवांटेज यही है कि आपकी अगर बाई चांस परसेंटेज कम आ रही है, इट डजंट मीन दैट यू आर बैड इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. हो सकता है आपने कोई आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, या आप साइंसेस के स्टूडेंट हैं, या अकाउंटिंग के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बट आपने कुछ और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है वाइल यू स्टडिंग 11th and 12th इन इंडिया. और अगर आप देखें तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आज की डेट में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं इन द कोविड सिचुएशन एज वेल, wherein they are trying to upgrade their skills while they're studying their 11th and 12th in India. तो ना केवल वो अपनी 11th और 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, बट इसके साथ वो साथ ही साथ कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दे रहे हैं, या ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस में भी अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, और उसके बाद वो भी अपने रिज्यूमे में, अपने CV में ऐड कर रहे हैं, सो दैट व्हेन दे अप्लाई टू द US कॉलेजेस, और लेटर ऑन जब वो अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो उनको ये एडेड एडवांटेज रहता है. तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई में, आपके एजुकेशन में 80-90% ही आएँ. अगर आपके 65-70%, 60% भी हैं, तो इट मीन्स दैट यू कैन स्टिल ड्रीम टू फिनिश अ बैचलर्स फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज़. अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जिसके 10 कैंपसेस हैं,
यूएस में। इट्स अ पब्लिक कॉलेज सिस्टम, पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम, जिसके यूसी बर्कले, ज़्यादातर बच्चों ने नाम सुना होगा, यूसी बर्कले, यूसीएलए, यूसी अर्वाइन, यूसी डेविस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन लेना है तो रफली उनके 90% एंड अबव 12th में होने चाहिए। एंड इट्स नॉट अबाउट 12th, इट्स अबाउट दे हैव टू मेंटेन द परफॉर्मेंस थ्रू आउट इन द लास्ट 4 years ऑफ देयर हाई स्कूल, जहाँ से वो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। तो ना केवल उनको 12th में अपने परसेंटेज मेंटेन करना है, बट उनको 9, 10th, 11th, 12th की परसेंटेज भी मेंटेन करनी है थ्रू आउट, कंसिस्टेंट रहना है अपनी परफॉर्मेंस पे। एंड इसके अलावा उनको अपने एस के बारे में भी ध्यान देना है, आईएलटीएस टोफल का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए उनका। अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद उनको अपने सोशल वर्क, कम्युनिटी सर्विस में भी ध्यान देना है। सो ये काफ़ी चीज़ें आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में फैक्टर करती हैं जब आप अप्लाई करते हैं यूएस में बैचलर्स डिग्री के लिए। फॉर्चुनेटली कम्युनिटी कॉलेज में, जहाँ से आप पहले 2 साल पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको ध्यान या इतनी ज़्यादा आपको इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दें जहाँ जब आप 11th और 12th कर रहे हैं इंडिया में। इफ़ इन केस यू मैनेज टू गेट गुड स्कोर्स, नथिंग लाइक इट, जितने ज़्यादा आप स्कोर्स लाएंगे उतना आपके लिए एडेड एडवांटेज है, बिकॉज आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे फर्स्ट 2 years में, और उसके बाद आपको एक हाई रैंक यूनिवर्सिटी के चांसेस हैं मिलने के 3rd और 4th ईयर में। अगर आप एवरेज परफॉर्मर है इंडिया में तो फिर भी आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज हमारा जो क्लास साइज़ है, अगर आप क्लास साइज़ की बात करें हमारे कॉलेजेस में, दैट इज़ बिटवीन 15 to 20 स्टूडेंट्स। अगर बच्चे 15 तो जब बच्चे स्मॉलर क्लास साइजेस में पढ़ाई करते हैं तो फैकल्टीज़, उनके जो लेक्चरर्स होते हैं, दे कैन फोकस मोर ऑन देम, उनको 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस में इनरोल करते हैं। उसके बाद वो अपने और वर्कशॉप्स और जो अटेंड कर पाते हैं टाइम पे, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, उनको कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। बट अगर आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अगर आप रैंकिंग कॉन्शियस और अगर आप फर्स्ट ईयर ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको ये हो सकता है कि आपको जो क्लास साइज़ है दैट वुड बी रफली बिटवीन 100 to 200 स्टूडेंट्स। कभी कभी एक लेक्चर साइज़ आपका 300 स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप इंडिया से एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बाहर एक यूएस में पढ़ाई करने के लिए, और अगर आपने इस एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ाई करी इंडिया में, तो आपको चैलेंजेस आ सकते हैं एक इंटरनेशनल सेटअप में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न वाई इफ़ यू स्टडी इन अ स्मॉलर क्लास साइज, it helps you to adjust smoothly and integrate smoothly into the education system of the US. अगर मैं आपसे एकेडमिक्स की बात करूं या एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, सो आपके रिक्वायरमेंट्स, एंट्री रिक्वायरमेंट्स में आईएल्स, टोफल, पियर्सन्स। सो वी एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट्स, वी एक्सेप्ट आईएल्स, वी एक्सेप्ट टोफल, वी एक्सेप्ट पीटीई एकेडमिक, वी ऑल्सो एक्सेप्ट डुओलिंगो टेस्ट एज वेल। और अगर कोई बच्चे जिन्होंने लास्ट के 2 साल अपने स्कूलिंग जहाँ से करी है उन्होंने, हाई स्कूल जो इंडिया से कर रहे हैं, अगर वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर लेके आ सकते हैं इंडिया से, तो उन बच्चों के लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का वेवर है। आप तो इन द सेंस दैट यू कैन अप्लाई विदाउट आईएल्स, विदाउट टोफल, विदाउट पीटी, विदाउट डुओलिंगो टेस्ट। ये सारे टेस्ट्स हैं आपके जो आप एक वन ऑफ द एंट्री रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप ये कोई भी टेस्ट नहीं देते हैं तो उसकी जगह आप अपना मीडियम इंस्ट्रक्शन लेटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आपको एंट्री रिक्वायरमेंट भी आपको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। और अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो वी नीड अ मिनिमम ऑफ 5.5 इन आइल्स, ओवरऑल 5.5। सो आई वुड से विच एवरी इंडियन स्टूडेंट कैन ईजिली गेट 5.5 स्कोर। और अ पियर्सन्स टेस्ट ऑफ जो पीटी टेस्ट में आपके 42 स्कोर आप कर सकते हैं, एंड टोफल में आपका 56 का स्कोर है। तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स बड़े फ्लेक्सिबल हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं, बिकॉज वी वांट टू इंश्योर दैट व्हेन यू कम देयर वी we enroll you for those classes which are relevant for you। तो जब आप वहाँ पे आते हैं तो आप हमारे एडवाइज़र्स के साथ बैठते हैं, उनके साथ कंसल्ट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। वो आपको बताते हैं कि कौन सी क्लासेस आपके लिए बेटर रहेंगी, क्या आपने पढ़ाई करी है इंडिया में, उससे रिलेटेड आपका क्या इंटरेस्ट है, लास्ट जो आपको मेजर्स करना है, तो उससे रिलेटेड आपको अपने सब्जेक्ट्स आप चूज़ करते हैं। सो दैट्स एन एडवांटेज ऑफ स्टडिंग इन अ यूएस एजुकेशन सिस्टम। जब आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में व्हेन एनरोल करते हैं यूएस में, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी क्लासेस हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे, वो आप यूएस में आके डिसाइड करते हैं। एनरोल आपको जो भी एनरोलमेंट जो होती है क्लासेस की, वो आप यूएस में आके आप डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से डिसाइड करके चलते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जैसे इंडिया में जब आप सीबीएसई या कोई भी आप स्टेट बोर्ड या आईएससी का करिकुलम पढ़ते हैं 12th में, तो आपको ये डिफाइंड होते हैं, पहले से ही आपके प्री डिफाइंड सब्जेक्ट्स होते हैं कि आपको ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, या साइंसेज में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं।
अब कुछ टाइम से ये एडेड एडवांटेज है कि स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं या एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। बट वहाँ पे आपको एक रेंज मिलती है, रफली 200-300 सब्जेक्ट्स की आपको रेंज मिलती है हर स्ट्रीम से। तो आपकी मर्ज़ी आपको क्या पढ़ाई करना है, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है। जौन सा भी आपको इंटरेस्ट है, वट एवर इंटरेस्ट यू हैव, and you want to say progress into that academic or professional career, accordingly you decide what you want to study, and हमारे advisors आपको help करते हैं, counselors हमारे आपको help करते हैं। As far as I said that कि when you transfer into the third and fourth year, you need to understand that जब आप एज अ फ्रेशमैन, जब आप एज अ फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, एज अ न्यू एप्लीकेंट आप अप्लाई करते हैं इंडिया से किसी बैचलर्स प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस रेट होता है यूएस यूनिवर्सिटीज़ का, स्पेशली अगर मैं टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ यूएस में, उसका एक्सेप्टेंस रेट हार्डली 10 to 15% है आपका। मतलब कि अगर 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एक यूनिवर्सिटी में, अगर वो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ हाईली रैंक्ड या टॉप 100 की, तो उस मुश्किल से उसमें 10 से 15 स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी उनको एडमिशन दिया जाता है। अब उसमें से भी वो स्टूडेंट्स कई बार बैकआउट कर जाते हैं, वेयर इन wherein they think that the fees of the tuition fees of those colleges are pretty high. So काफ़ी reasons होते हैं जिसके वजह से students US को drop कर जाते हैं अपने बैचलर्स में परस्यू करने के लिए, बैचलर्स प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए। So as I said that कि आप 2 साल हमारे community colleges में, it's a 2+2 transfer track, wherein these are not diplomas. First of all, you need to understand that these are not diplomas. These are a part of the US education system. एसोसिएट डिग्रीज आप पढ़ेंगे जहाँ पे आप 2 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ ईयर अपना यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपका एक्सेप्टेंस रेट, जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपका एक्सेप्टेंस रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है टू एज हाई एज 90%। तो अगर आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, हाई ट्रांसफ़र लेना है, तो आपके जो ट्रांसफ़र जैसे मैंने आपको बताया वो 90% तक चले जाता है आपका। तो लेट्स अगर मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्कूल्स में आते हैं आपके वर्ल्ड में, तो अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है, मैं यूएस की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी वर्ल्ड की, अगर मैं रैंकिंग्स की बात करूँ, तो अगर आप टॉप 50 यूएस, टॉप 50 वर्ल्ड रैंकिंग्स की बात करें, तो वहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस थ्रू आउट। सेकेंड, यू हैव टू स्कोर अ हाई IELTS स्कोर, SAT स्कोर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। Hello. I think there was some issue with the internet connection. So can you hear me? I will come to your questions, whatever questions you are posing on the comment section. So I will just answer those questions in a while. First, I just wanted to complete the brief information about our colleges. So just let me know if you can hear me, please, because there was some connection issue, and I had to drop out. Okay. Susan, can you hear me? Because I'm just checking your question that do you have any courses in your college for students who have already completed graduation in India? Is this your question, Susan? Yeah, okay, thank you. Susan, so unfortunately, when you say that, okay, a student who has completed ग्रेजुएशन इन इंडिया, विच मीन्स ग्रेजुएशन मीन्स बैचलर्स इन इंडिया, जिसको हम अंडर ग्रेड्स कहते हैं, ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि जब आप यूएस में जब ग्रेजुएशन वर्ड को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन का मतलब होता है मास्टर्स, और जब आप इंडिया में बात करते हैं ग्रेजुएशन, उसका मतलब होता है बैचलर्स। तो ये डिफरेंस है आपकी यूएस और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। सो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि किसी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी इंडिया में, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि किसी ने अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी है। तो हमारे कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम में पढ़ाई करनी है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपका रफली 9 मंथ्स से लेकर 1 ईयर तक का होता है, जिसकी ड्यूरेशन 9 मंथ्स से लेकर 12 मंथ्स की होती है। तो अगर आप चाहें तो आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जा सकते हैं, और उसके बाद आप
अपना चाहें तो मास्टर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, बट आप चाहें तो 2 इयर्स की एसोसिएट डिग्री भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने बैचलर्स इन आर्ट्स करा है या बैचलर्स इन साइकोलॉजी करा है, बट लेटर ऑन आपको लगता है कि आपको बैचलर्स इन किसी और फील्ड में करना है, बैचलर्स इन बिजनेस में जाना है या ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना है, एचआर में करना है, तो डेफिनेटली आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं और आप 2 इयर्स की एसोसिएट डिग्री करके आप फिर लास्ट के 2 साल चाहें तो आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं बैचलर्स की, नहीं तो आप अपनी 2 साल की एसोसिएट डिग्री करके भी आप यू कैन स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज यूएस में एट एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन you get a chance to work. For an example, as I said earlier that जब आप complete करते हैं अपनी बैचलर्स डिग्री, आपको 4 साल मिलते हैं, सॉरी आपको पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स मिलती हैं 3 साल की आप स्टेम प्रोग्राम के लिए और 1 साल की आपको नॉन स्टेम प्रोग्राम के लिए। और जब आप एसोसिएट डिग्री के लिए इनरोल करते हैं और उसके बाद भी आप काम कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली वर्क फॉर 1 year आफ्टर यू हैव completed your 2 years of associate degree as well. So so that's how it is. So if in case you want to do your if you want to work after 2 years of your associate degree, definitely you can do that, and then you can resume your studies later on and complete your third and the fourth year. Now in your case, Susan, if this student or if you are a student and if you want to complete your bachelor's in another course or you want to do a certificate course, definitely you can do that, and you are eligible for a 1 year post-study work right as well. And if in case you want to complete your bachelor's in another stream, then you can work for another 3 years as well, so when you have completed your bachelor's. So आपको work rights आपको 2 बार ही मिलते हैं, और उसके बाद जब आप मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको फिर दोबारा आपको वर्क राइट्स मिलते हैं. सो एट एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन दैट यू डू, यू गेट योर वर्क राइट्स टाइम एंड अगेन. You need to understand this. Now, I was talking about the entry requirement in IELTS, TOEFL, Pearson's test. तो आपके आप चाहें तो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, any of these test scores, या आप अपना मीडियम इंस्ट्रक्शन लेटर आप इंडिया में जो भी आपने पढ़ाई करी है लास्ट के 2 साल में, आप वो प्रोड्यूस करके अपना आप एडमिशन ले सकते हैं. Now, as far as the transfer rate, I was talking about the acceptance rate in the top universities. So whenever you apply to the universities, first of all you have to take care कि आपकी एडमिशन डेडलाइंस कब हैं और आपकी कहीं वो मिस तो नहीं हो गई है, या आपकी कहीं किसी रीज़न से आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाए, या आपकी एडमिशन एक्सेप्ट नहीं हो पाई है, या आपको ऑफ़र नहीं मिल पाया है. काफ़ी सिनेरियोज हो सकते हैं, या कई बार फ़ीस ज़्यादा होती है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर डूइंग योर बैचलर्स इन द यूएस, अगर आप एक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करते हैं बैचलर्स डिग्री, तो वहाँ पे आपकी जो फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस का जो रेंज है, दैट गोज़ फ्रॉम आई वुड से $20,000. ये मैं बहुत ही बेसिक प्राइस बता रहा हूँ, $20,000 पर ईयर ट्यूशन फ़ीस, टू एज हाई एज आई वुड से $55,000 to $60,000. तो इतना बड़ा रेंज है आपका एक ट्यूशन फ़ीस का, आप यूएस में अप्लाई करते हैं. तो अगर आप किसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी ट्यूशन फ़ीस एज high as $55,000-$60,000 भी हो सकती है, and that could be a private school as well. Private, when I say private, in the sense a private school means the private university or a college. और अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सिस्टम के बारे में ही बात करूँ, तो वहाँ पे भी आपकी एवरेज फीस, ट्यूशन फीस इज़ रफली $45,000 to $48,000. तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स कई बार बैकआउट कर जाते हैं और वो फिर कनाडा को देखते हैं, यूके को देखते हैं एज अ फॉल बैक ऑप्शन in terms of वहाँ पे, क्योंकि आपका जो ट्यूशन फीस है वो कम है, and then at times they compromise on the college or the university as well. So without compromising on the quality of the education, without worrying on the entry requirements, without worrying on the tuition fees, San Mateo Colleges is a very good bet for you. It's a safer entry point for all the international students. Specifically India की बात करूँ मैं, हमारे यहाँ पे ट्यूशन फीस approximately $8,000 है for 24 credits per year. जैसे मैंने आपको बताया है कि in order to transfer into a third year of your university, you have to complete 60 credits in 2 years. तो अगर आप on an average 30 credits एक साल में पढ़ाई करते हैं तो उसकी ट्यूशन फीस आपकी रफली $10,000 पड़ेगी, $10,000 to $10,500 पड़ेगी एक साल की. अगर मैं इंडियन करेंसी में उसको कैलकुलेट करूँ तो रफली 7.5 to 8 lakhs है. तो जो कि आपकी एक इंडियन, एक में आप टीयर 2 यूनिवर्सिटी या टीयर 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस आज की डेट में 5 से 6 लाख 8 लाख रुपए है. तो एंड इफ़ इन केस यू स्टडी with us, as I said, that our location itself is quite attractive. So you get the chance to work with all the leading tech companies and all the leading
giants, the multinational giants in the US. तो वहाँ पे आप उनके internships वहाँ पे आप कर सकते हैं while you are studying with us, and then once you have completed your associate degree or your bachelor's, you can start working in those companies. So, and average starting salaries I would say are pretty high. I would say $45,000. अगर आप एसोसिएट डिग्री कंप्लीट करते हैं तो भी आपको $45,000-50,000 मिल जाते हैं एक साल के, और अगर आप बैचलर्स डिग्री जाके कंप्लीट करते हैं तो तब भी आपको $55,000-60,000 ऑन एन एवरेज आपको मिल जाते हैं, इफ़ इन केस यू आर डूइंग प्रीटी वेल इन योर बैचलर्स एंड यू हैव डन कपल ऑफ इंटर्नशिप, CPTs भी करे हैं अगर आपने, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं और सैलरीज आपकी काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आप देखें कि अगर आप 2 साल हमारे पास पढ़ाई करते हैं तो आपको करीबन $60,000 आपको सॉरी आपको $20,000 के करीब आपका ट्यूशन फीस आपकी स्पेंड होती है। वैसे भी अगर आप एक टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आप रफली $90,000 देते हैं। तो आप फाइनेंशियली आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में you save you find yourself in a very good financial position as well, because you save up to $70,000 in the first 2 years of your bachelor's degree. और जब आप थर्ड और फोर्थ ईयर में ट्रांसफ़र लेते हैं तो हमारे जो एडवाइज़र्स हैं वो जब आपकी जैसी परफॉर्मेंस रहती है आपकी फर्स्ट 2 years में, सो दे सिट विद यू, दे अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर अंडरग्रेड्स बैचलर्स, और अकॉर्डिंगली वो आपको सजेस्ट करते रहते हैं। वो बताते हैं कि आपकी ये परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको GPA मीन्स ग्रेड पॉइंट एवरेज आउट ऑफ 4 आपको मेंटेन। सो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स 3.5, इंडियन स्टूडेंट्स रफली 3.5 ले आते हैं फर्स्ट 2 years पढ़ाई करके, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज, एज हाई एज आई वुड से 85 to 90% अगर मैं बात करूँ तो 3.5 इज़ अ प्रीटी गुड स्कोर जो आप मेंटेन करते हैं अगर आप फर्स्ट 2 years में, तो यू कैन expect to get into a top ranked college, and you can even get few scholarships as well in the third and the fourth year. So जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं वो डिपेंड करता है आपको कि आपको कौन सी लोकेशन में पढ़ाई करनी है, कौन से कोर्स में आपको अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी है, क्या आपका बजट है लास्ट के 2 साल में, कितना स्कॉलरशिप्स आपको मिल रहा है, कहाँ से आपको इंटर्नशिप्स कहाँ आपको इंटर्नशिप्स मिल रही हैं। सो एज आई सेड दैट वी आर पार्टनर विद 149 यूनिवर्सिटीज़ इन द US, जहाँ पे हमारा डायरेक्ट आर्टिकुलेशन मीन्स ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स हैं हमारे इन कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो दे आर नॉट ओनली इन कैलिफोर्निया, दे आर आउटसाइड कैलिफोर्निया एज वेल। तो वो दूसरे स्टेट्स में भी हैं, वो टेक्सास में भी है, फ्लोरिडा में भी है, न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में है, मिशिगन में है, वाशिंगटन में है। सो आपको जहाँ पे भी आपको ट्रांसफ़र लेना है, जो भी हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप है, you sit with our experts or advisors there and you get transfer into those universities later on in the third and the fourth year. As far as the admission intakes are concerned, I would say and the deadlines, हमारे 2 intakes हैं, fall which is August, and spring that is January. So currently हमारा जो fall intake है that we are running online, जहाँ पे हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, और अब ये 19th of August which is tomorrow our intake starts, and बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर इंडिया से रफली 35 to 36 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए, एंड जो कि अभी पढ़ाई करेंगे, एंड देन दे व्हेन द सिचुएशन इम्प्रूव्स एंड when the things improve in the next couple of months, they can fly and they can start their program, they can start for the second semester in January, या आप चाहे तो स्ट्रेट अवे जनवरी इनटेक में भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इस साल कंप्लीट किया है 12th या लास्ट ईयर किया है या 2 साल पहले भी किया है, सो दे कैन अप्लाई फॉर द स्प्रिंग January 2021 intake. Our admission deadlines are as late as November, mid of November, so that should not be a concern. आप मिड ऑफ नवंबर तक भी, आई थिंक December 1st week तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इसलिए मिड ऑफ नवंबर कह रहा हूँ बिकॉज आपको वीज़ा के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स भी लेनी है, बिकॉज इंडिया में फॉर द US यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू द वीज़ा इंटरव्यू स्टेज, और मैं इंटरव्यू नहीं कहूँगा, मैं इंट्रैक्शन राउंड कहूँगा। सो कई बार बच्चे बैकआउट कर जाते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कुछ Tier 2 सिटीज़ से, कि वो बच्चे घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि वी आई हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू एंड वहाँ जाके मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस। आपको प्रोग्राम समझ आना चाहिए, आपको ये समझ आना चाहिए कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, कौन सा कॉलेज के लिए जा रहे हैं, क्या लोकेशन है, आप क्या करेंगे पढ़ाई करके वहाँ पे, क्या आपका
आउटकम आएगा, अगर आप ये सारे, और कौन आपके स्पॉन्सर्स हैं, अगर आप ये चीज़ें कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं वीज़ा ऑफिसर को, तो वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा डिनाई नहीं कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन डिनाई नहीं कर सकता है। अगर आप आंसर नहीं देंगे, बिकॉज वी एक्सपेक्ट, बिकॉज आप you are spending money and you're coming to the US, so we expect that you are a genuine and a committed student, you are pretty serious about your studies, आपको पता है कि आपने क्या पढ़ाई करनी है, क्या आउटकम है आपका। अगर आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको वीज़ा ग्रांट होगा। तो एक गुड न्यूज़ है कि अब कल से ही, इनफैक्ट 17 अगस्त, येस्टरडे, फ्रॉम येस्टरडे ऑनवर्ड्स वीज़ा काउंसलेट्स ओपन हो गए हैं इंडिया में। US वीज़ा काउंसलेट्स आर ओपन इन इंडिया, विच मीन्स आप अब वीज़ा अपॉइंटमेंट्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में। फॉल इनटेक के लिए अगर कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जिनके प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं सितंबर में या अक्टूबर में, तो वो अपना अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा इंटरव्यूज़ के लिए। और जिनके प्रोग्राम्स ऑब्वियसली जनवरी में हैं, तो वो एडमिशन्स करके आप अपना इंटरव्यू अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं फॉर द मंथ स्टार्टिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप अपनी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप अपनी अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द जनवरी इनटेक। Now this session, I really thank थोड़ा सा लेट thanks कर रहा हूँ to Turning Point Studies, because I was quite involved in this information. So I really thank the Turning Point Studies Limited, जो करनाल बेस्ड है, जिनके हेडक्वार्टर्स करनाल में है, मिस्टर नरेश भारती and his wonderful team, those who have arranged this session. So they are one of our prime partners in India, who would be processing the applications, educating the students on our 3 colleges, and they will process your applications. They will help you right from the word go till the visa stage. They will also help you in terms of visa interviews. When I say visa interview preparation, that means that they are just educating you there, because we expect that you should at least know what are the basic questions and how you have to formulate your answers. But still, they have a very experienced and professional team. They will help you with with what type of questions are asked and how you have to articulate your answers. But more or less, it is your work. They will just guide you. And Turning Point has been in this industry from the past 27 years, and I know Mr. Bharti. I think from 2009 onwards, 12-13 साल हो गए मेरी उनसे ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हुए, एंड आई बिलीव that they are one of the most professional organizations in India, and we don't partner with many organizations. Let me be very clear to you. हम ज़्यादा agents, या क्योंकि इंडिया में agents word यूज़ किया जाता है, बट हम agents की जगह partners यूज़ करते हैं word. तो इंडिया में हम ज़्यादा partners के साथ काम नहीं करते हैं. We only work with the quality driven partners. We are okay with getting less number of students. Our focus is not to get more students. Our focus is to get committed and genuine and serious students, and that is what Turning Point also believes in. तो हम चाहते हैं कि आप आपकी जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी आपको कोई क्वेरीज़ हैं, आप वो सारी क्वेरीज़ आप जो उनकी टीम है उनके साथ आप बात कर सकते हैं. मेरा नंबर, आप मेरी डिटेल्स आप उनसे ले सकते हैं, एंड देन वी कैन अरेंज one-on-one सेशंस एज वेल विद योर पेरेंट्स और with your sponsors as well, जो कि आपके guardians हैं, उनके साथ हम one-on-one sessions भी कर सकते हैं, and I can help you out with any queries you have. Now, I was just seeing one question wherein it says, when does a student need to finalize which university they need to take a pathway to? That's a very good question. And does he have to decide when he takes admission with your college or later, and can it be changed? This is a very good question. As I said, that we have a partnership agreement with 149 universities. जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ऑनलाइन, सो एवरी एप्लीकेशन इज़ ऑनलाइन, सबमिटेड ऑनलाइन. सो हर स्टूडेंट को सेपरेट अपनी एप्लीकेशन डालनी होती है. ये नहीं कि कोई पार्टनर आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन डालेगा, आपको गाइड करेगा, बट आपका एप्लीकेशन अपने यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है. दे विल शेयर द लिंक्स विद यू. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑन अ वेबसाइट. सो आपने वो लिंक्स को क्लिक करना है, और उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टेज पर जाते हैं, तो वहाँ पे देर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस. तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट what college, what program you want to study. So let's say you have selected computer sciences, or let's say engineering or accounting. तो वो आप program course को select करेंगे, and then उसके ही नीचे एक question आएगा which university or which college you want to progress to. जैसे मैंने आपको बताया, ये पार्टनर विद 149 यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पे वो लिस्ट दी होगी, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी को आपको चूज़ करना है. तो
In California, we give guaranteed conditional offer letters. Uh, I would like to touch on this point a little bit more. When I say guaranteed conditional offer letter, it means that जब आप हमारे कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आपको हमारे कॉलेज का ऑफर लेटर मिलता है. देन यू गेट एन I-20. वो I-20 लेके आप अपने वीज़ा इंटरव्यू में जाते हैं. वहाँ पे आपका सर्विस आईडी क्रिएट होता है, उसी से आपको वीज़ा मिलता है. सो I-20 आपको मिलेगा हमारे कॉलेज का, जहाँ पे लिखा होगा कि आप प्रोग्राम में, ये आप एसोसिएट डिग्री में इनरोल हो रहे हैं, इतने ड्यूरेशन का आपका प्रोग्राम है. एंड उसके साथ आपको गारंटेड कंडीशन ऑफर लेटर मिलेगा थर्ड ईयर का, जिस कॉलेज में आप ट्रांसफ़र लेते हैं. तो जो भी आपका क्वेश्चन है जानकी, सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, कि जब आप इसमें, आप उसी वक्त एप्लीकेशन स्टेज पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं व्हाट कॉलेज यू वांट टू ट्रांसफ़र टू इन द थर्ड ईयर. सो along with your offer and the application, along with the offer and the I-20, we give you the guaranteed, आपको guaranteed condition offer letter मिलता है, जहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको इतना GPA मेंटेन करना है, आपको इतने क्रेडिट्स आपको अर्न करने हैं इन द फर्स्ट 2 ईयर्स, और उसके बाद आप थर्ड ईयर में आप ट्रांसफ़र हो जाए तो आपकी सीट कन्फर्म्ड होती है. आपकी थर्ड ईयर की सीट कन्फर्म्ड होती है. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मेंटेन दैट परफॉर्मेंस एंड यू हैव टू अर्न दोज मेनी नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन द फर्स्ट 2 ईयर्स. अब जो इनका सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि लेट्स से अगर मैंने अभी यहाँ से अपना यूनिवर्सिटी चूज़ करी, लेट्स से एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी विच इज़ इन अ स्टेट ऑफ एरिज़ोना. तो अगर आप एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोग्रेस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जो कि कैलिफोर्निया स्टेट से बाहर है, आउटसाइड कैलिफोर्निया, तो आप वहाँ वो भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं. और अगर लेट्स से आप वहाँ जाते हैं और आपको लोकेशन अच्छी लगती है, आपको दिखता है कि वहाँ पे सिलिकॉन वैली में ऑप्शन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, and you want to complete and you want to do your last 2 years from a college or a university in California itself, तो आप हमारे ट्रांसफ़र एडवाइजर्स के साथ बैठ के आप अपना यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि जो भी आपने यूनिवर्सिटी पहले डिसाइड करी है, ये नहीं कि आपको उसी यूनिवर्सिटी में जाना है. कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई आपने शुरू में किया और आपको उस यूनिवर्सिटी से थर्ड ईयर की एडमिशन मिल गई, बट आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिली, तो तो हो सकता है वो आपके फाइनेंशियल बजट से ऊपर है. तो इस केस में यू कैन डिसाइड एंड यू कैन सिट विद आवर एडवाइजर्स, दे विल मेक यू अप्लाई टू लेट्स से 8 to 10 कॉलेजेस एज वेल, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं. तो दीज आर द एडवांटेजेस दैट यू गेट टू स्टडी इन अ कम्युनिटी कॉलेज. सो इट्स अ 2+2 ट्रांसफर सिस्टम. प्लीज़ अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. इंडिया में आपको अगर IT में अप्लाई करना है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसफ़र लेना बड़ा ही मुश्किल है. आपको बहुत ही रेयर है कि आपको ट्रांसफ़र मिलता है इंडिया में. बट अगर आपको IIT से पढ़ाई करनी है, और लेट्स से अगर आप JEE क्रैक नहीं कर पाए, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाए, और अगर आप एक Tier 2 इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं इंडिया में, और आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं, 2 साल आप वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो आप बहुत ही रेयर है, मैंने तो सुना नहीं कभी कि आप IIT में थर्ड या फोर्थ ईयर में आप अपने लास्ट के 2 साल कंप्लीट कर सकते हैं. बट इंडिया में बट US में ऐसा नहीं है. यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट 2 years एट अ कम्युनिटी कॉलेज, which is a wonderful pathway. Again, as I said, it is not a path. When I say pathway, it is a route. It's a transfer route. It is not exactly a pathway program. It is a transfer route where you complete your first 2 years of your associate degree, earn your associate degree, and then transfer into a top ranked college without worrying on your academics. आपको कोई SAT नहीं देना. यू डोंट हैव टू वरी ऑन योर SATs एज वेल. नहीं तो इंडिया में बच्चे 11th-12th में SAT ही पढ़ते रहते हैं, फिर वो देखते हैं कि उनका 1400 SAT आ रहा है, किसी का लेट्स से 1100 आ रहा है या 1000 आ रहा है, फिर वो अकॉर्डिंगली अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं. तो आपको SAT की कोई इसमें अगर आपके पास SAT स्कोर है, वेल एंड गुड. अगर अच्छा स्कोर है तो आपको हेल्प ही करेगा थर्ड और फोर्थ ईयर में. बट आपको SAT स्कोर नहीं चाहिए अगर आपको थर्ड और फोर्थ ईयर में आप ट्रांसफ़र लेते हैं, बिकॉज आपके जो फर्स्ट 2 years की जो आपके क्रेडिट्स है, जो आपका GPA है, जो आप स्कोर करते हैं, जो आप परफॉर्मेंस है, वही काउंट होती है आपकी व्हेन यू ट्रांसफर इनटू अ टॉप रैंक कॉलेज. तो आपके एकेडमिक्स थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड ईयर के काउंट होते हैं. आपकी फिर 12th की परसेंटेज नहीं देखी जाती है. और आपका ट्रांसफ़र रेट बहुत हाई होता है. एज आई सेड, वी आर द नंबर 1 ट्रांसफर्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सिस्टम, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट द UC बर्कले ट्रांसफ़र सिस्टम की हम बात करें, तो आर ट्रांसफ़र रेट इज़ रफली 70%, एंड बिटवीन 70 to 80% हमारा ट्रांसफ़र रेट है टू द टॉप यूनिवर्सिटीज़, स्पेसिफिकली UC बर्कले की बात करें. और अगर आप UC बर्कले या UCLA में एज अ फ्रेश स्टूडेंट, एज अ न्यू एप्लीकेंट, एज अ फ्रेश एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं इन द फर्स्ट ईयर, वहाँ का एक्सेप्टेंस रेट आपका हार्डली 8% है. तो इमेजिन आपको 8% एक्सेप्टेंस रेट मिल रहा है, और अगर आप 2 साल हमारे पास पढ़ाई करते हैं तो आपको 75 to 80% आपका
एक्सेप्टेंस रेट है इन द टॉप रैंक, टॉप 50 स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा, यूसी बर्कले, यूसीएलए की पहले 2 साल की ट्यूशन फीस या किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की फ़ीस या एक टॉप रैंक कॉलेज की फ़ीस आपकी रफली $45,000 to $50,000 है। तो 2 साल में आप अप्रॉक्सीमेटली $90,000 से $100,000 ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं। और अगर आप हमारे रूट के थ्रू, कम्युनिटी कॉलेजेस के ट्रैक के थ्रू आते हैं, तो आपको केवल $20,000 पे करने हैं, विच मीन दैट यू आर सेविंग एज हाई एज $70,000। अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो रफली 50 lakhs। वो मनी आप यूटिलाइज कर सकते हैं टूवर्ड्स योर मास्टर्स लेटर ऑन, विच इज़ अ ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो दैट्स हाउ यू प्लान योर स्टडीज़। In terms of, as I said, admission deadlines, we are open for the spring intake, which is January 2021, या next fall. अगर कोई students अभी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, so they can apply for the next fall as well. They can start applying for the next fall as well. Uh, Application is pretty easy. You create your login and password. You create your account online with us. Then you submit your documents like 12th mark sheet, 10th, 12th mark sheet, IELTS सर्टिफिकेट, टोफल, पीटी, डुओलिंगो, कोई भी आपने टेस्ट दिया हुआ है, या आप मीडियम इंस्ट्रक्शन लेटर अपना डाल सकते हैं। और फाइनेंशियल्स, आपको फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, अपना बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, विच इज़ $25,400, 25400, $25,400 आपका फाइनेंशियल सर्टिफिकेट है, विच इज़ रफली 19 lakhs। इतना आपको बैलेंस दिखाना है अपने बैंक अकाउंट में। इट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट से कि कितना पुराना होना चाहिए। हम आंसर कर रहे हैं कि इट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, विच मीन्स अगर आपका अगर आप कल बैंक के पास जाते हैं और आप वहाँ पे अगर आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट अपना 19 lakhs का दिखाते हैं, इट इज़ फिर कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। हमें बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको बैंक बैलेंस, लेट्स से आज की डेट में अगर आपको इशू आ रहा है बैंक से, टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, यू डोंट वांट टू गो विजिट द बैंक्स, तो आप अपनी ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट भी जनरेट करके उसका बैलेंस, करंट बैलेंस आपका इक्विवेलेंट टू $25,400 होना चाहिए, विच इज़ रफली 19 lakhs। अगर आप इतना बैलेंस अपना शो करते हैं तो आपको हम I-20 इशू करते हैं, एंड देन यू अप्लाई फॉर योर वीज़ास लेटर ऑन। एंड US में, एज आई सेड, दैट इट्स अ इंट्रैक्शन राउंड। ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा पहले ही बारी में ग्रांट हो जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी एंड यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट। कई बारी अच्छे स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कई बारी वो घबरा जाते हैं या कई बारी वो पैनिक कर जाते हैं, वो आंसर नहीं कर पाते कॉन्फिडेंटली। वो जो यूनिवर्सिटी ऑफिसर क्वेश्चन पूछ रहा है वो फोकस नहीं है उस वक्त, वो आंसर नहीं कर पाते, तो कई बारी वो गलत आंसर दे जाते हैं, कई बारी इसलिए उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। बट इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट रीअप्लाई। सो US ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको वीज़ा सेकेंड अटेम्प्ट में भी मिल सकता है, फर्स्ट में भी मिल सकता है, इनफैक्ट फिफ्थ अटेम्प्ट में भी मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू परफॉर्म एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड यू हैव टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट। इट्स जस्ट एन इंट्रैक्शन राउंड। आपके सामने एक वीज़ा ऑफिसर है जो कि एक US नेशनल है, वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो उसका राइट है, उसको पता है कम्युनिटी कॉलेजेस क्या होते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, 45% ऑफ द अमेरिकन स्टूडेंट्स, 45% ऑफ द अमेरिकन स्टूडेंट जो अपनी बैचलर्स कंप्लीट करते हैं US से, वो अपनी जर्नी एजुकेशन की कम्युनिटी कॉलेजेस से स्टार्ट करते हैं। मतलब कि अगर US में लेट्स से 100,000, 1 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एक साल में बैचलर्स, तो रफली 45,000 स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स होते हैं। सो 45,000 स्टूडेंट्स अपने कम्युनिटी कॉलेज ट्रैक से स्टार्ट करते हैं। वो बिकॉज उनको पता है कि आपका ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है दूसरे स्टेट्स में, आपको फोकस्ड है, आप स्मॉलर क्लास साइजेस हैं और ट्यूशन फीस आपकी कम है, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है आपको, और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और लास्ट के 2 साल, बिकॉज जहाँ से आप लास्ट के 2 साल कंप्लीट करते हैं वो डिग्री आपको काउंट होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो US में द लास्ट 2 years फ्रॉम वेयर यू फिनिश अ बैचलर्स, उसकी आपको डिग्री मिलती है। तो हमारे केस में आपको 2 डिग्रीज मिल रही हैं, आपको एक एसोसिएट डिग्री भी मिल रही है एंड यू ऑल्सो गेट एन अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री एज वेल। सो ये आपके एडवांटेजेस हैं। एज आई सेड अर्लियर दैट आप एसोसिएट डिग्री पढ़ाई करके भी आप 1 साल काम कर सकते हैं, फिर आप अपनी 3rd और 4th ईयर वापस आके कंप्लीट करके फिर आप अपना 3 साल आप अपनी काम कर सकते हैं। तो आपको 4 साल काम मिल रहा है करने को अगर आप स्टेम प्रोग्राम में जाते हैं, और अगर आप नॉन स्टेम में जाते हैं तो आपको 2 साल मिल रहा है, 1 साल एसोसिएट डिग्री के बाद और 1 साल बाद में आपको। तो आपको एडवांटेज ये है एसोसिएट डिग्री के बाद, तो आपको 2 डिग्रीज मिल रही हैं, एसोसिएट डिग्री भी मिल रही है आपको और आपको एक बैचलर्स डिग्री मिल रही है।
आपको चांस मिल रहा है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए विद इन कैलिफोर्निया एंड आउटसाइड कैलिफोर्निया एज वी आर पार्टनर विद 148 यूनिवर्सिटीज़. लोकेशन सिलिकॉन वैली से बढ़िया लोकेशन आपको मिलेगी नहीं यूएस में इन टर्म्स ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोजर, developing the network, the professional network, if we talk about internships while you're studying on campus, and scholarships in the third and the fourth year. एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भी पूछा है कमेंट सेक्शन में कि do we provide any scholarships in the first 2 years? Definitely you can apply for scholarships while you are enrolling yourself in the first 2 years with us as well. जो कि ज़्यादा रेंज नहीं है, आपका रेंज $500 से लेके $2,000 का मिलता है आपको, बिकॉज आप ये देखिए कि हमारी ट्यूशन फीस हार्डली $8,000 है 24 क्रेडिट्स की, और एक साल की $10,000 है जहाँ पे आप 30 क्रेडिट्स अर्न करते हैं. सो आपको स्कॉलरशिप्स काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पढ़ाई करने की, अर्न करने की. 1% अगर आपको स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, एज आई सेड अर्लियर, यू परफॉर्म वेल in the first 2 years and then you can apply for the scholarship in the third and the fourth year. Again, it's not necessary that आपको एक particular stream में ही पढ़ाई करनी है. You can actually do more subjects. In the US, you can do a couple of majors as well. आप कुछ सब्जेक्ट्स दूसरी स्ट्रीम से भी ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं. इंडिया में तो आप बन जाते हैं if in case you study, if you are enrolled in humanities or commerce and sciences, and अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो एक साल बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये it is not my cup of tea, or probably I want to study in a separate stream or different stream. So आपको अपनी एजुकेशन दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है. बट यूएस में ऐसा नहीं होता. That's the reason why I am focusing on, emphasizing on, you start your journey with the community college. Then when you arrive on campus, you sit with our advisors. They design an education plan for you. You enroll for the classes which you are comfortable with, which you want to study, which you can study, I would say. एंड उसके बाद आपका एजुकेशन प्लान वो ट्रैक पे रखते हैं, वो देखते रहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी देखते हैं फॉर द फर्स्ट 2 years, एंड अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट योर third and the fourth year. You transfer into the third and the fourth year. Now, any questions you have? There is a question that what all boards are accepted. Now, from India, if I talk about, we accept CBSE, we accept ISC, we also accept international curriculums like CIE A levels, IB as well, and you can even apply if you are if you finished your 12th from an open school as well. Yes, किसी state board school से भी हैं, because we do not discriminate. As I said earlier, that entry requirements are quite flexible. We do not discriminate that a student who has completed his 12th from an open school, which it means that a student is bad in academics, or maybe there are different factors because of which a student enrolled himself and finished his 12th from an open school, या किसी state board school से उसने अपना complete किया. So we are quite okay with that. So you can apply from any board, and if you can produce a medium of instruction letter, then your English language condition is waived off. Now, as far as accommodation is concerned, we do not have accommodation option on campus. So we have a dedicated team of homestay coordinators. Now there are two options. आप चाहें तो एक अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं, और आप you can share your apartment with a group of other international students as well, or you can live in a studio apartment as well. You can be alone as well. So that's an option. So you can either rent an apartment, or you can stay with an American family, which is known as a homestay option. इंडिया में उसको हम पेइंग गेस्ट की तरह पेइंग गेस्ट बोलते हैं. तो आप चाहें तो you can stay with a American family as well. American family can be of Indian origin as well. American family can be of any origin. So it's an American family, which means that they are American citizens. So you can stay with them, and we have a dedicated team of homestay coordinators. On an average, हमारी जो आपकी accommodation की fees है, charges हैं, वो roughly आपके
$1,000, $1,070 per month है, which includes meals as well, and that's a shared accommodation. नाउ आपको अकोमोडेशन 10 मंथ्स के लिए मिलती है, बिकॉज 2 महीने आपकी सेमेस्टर ब्रेक्स होती हैं. सो उस दौरान आप को अकोमोडेशन नहीं आपके पास होती है. तो आप चाहें तो आप अपने होम स्टे कोऑर्डिनेटर के साथ बात करके, आप अमेरिकन फैमिली के साथ बात करके, यू कैन स्टे इन दोज 2 मंथ्स एज वेल, और यू हैव टू शिफ्ट योर प्रेमिसेस. बट अगर मैं बात करूँ तो आपके 10 महीने का जो खर्चा है, द एक्सपेंसेस आर $10,700 इफ़ आई टॉक अबाउट. उसके बाद आपके इंश्योरेंस चार्ज है, आपकी बुक्स एंड अदर इंसिडेंटल फीस, आपकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, अगर आप बेसिक चार्जेस हैं आपके, लाइब्रेरी चार्जेस हैं आपके, सॉरी नॉट द लाइब्रेरी चार्जेस, द जिम चार्जेस हैं आपके, जो भी फैसिलिटीज़ आप अवेल करते हैं उसके बहुत ही मिनिस्क्यूल चार्जेस हैं आपके. दैट्स द रीज़न वी आर आस्किंग you to produce a financial certificate of $25,400. इस $25,000 में we are including your tuition fees, we are including your insurance, we are including your accommodation. Now you are not paying $25,400. आप पे नहीं कर रहे हैं, आप शो कर रहे हैं अमेरिकन US वीज़ा काउंसलेट को, यूनिवर्सिटी को. So you are just showing those in term whether, which means that your parents are financially capable enough to support your education. तो ये आपको प्रोड्यूस करना है. आप जितना ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए बेटर है, बट मिनिमम आपको $25,400 करने हैं. एक और एडवांटेज US में पढ़ाई करने का है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ पब्लिक कॉलेज में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, वी आर पब्लिक कॉलेज, आई सेड अर्लियर, वी आर पब्लिक कॉलेज सिस्टम. आपकी जो भी ट्यूशन फीस है, when you get your visa approved, जब आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो आपकी ट्यूशन फीस US में जाके आप पे करते हैं. इंडिया से आप ट्यूशन फीस पे करके नहीं जाते हैं. प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए. कुछ कंसल्टेंट्स हैं या कुछ आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जो आपको बोल सकते हैं कि आप US से, इंडिया से पे करके जाएँ फ़ीस. बाय लॉज हम आपसे फ़ीस नहीं ले सकते हैं, बिकॉज हमें यही नहीं पता कि आप कौन सी क्लासेस के लिए एनरोल कर रहे हैं. मैंने आपको जैसे बताया, आप जब ऑन कैंपस में अराइव करेंगे, देन आप हमारे जो एडवाइज़र्स हैं वहाँ पे, हमारे जो काउंसलर्स हैं, एकेडमिक काउंसलर्स हैं, उनके साथ आप बैठेंगे. जब आप ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे, तो उस ओरिएंटेशन में आप डिसाइड करते हैं, आप पिक एंड चूज़ करते हैं कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई करने हैं, और वो आपको डिसाइड करके आपको बताएंगे कि ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं. जो आप क्लासेस में एनरोल करते हैं, मिनिमम आपको 12 क्रेडिट्स आपको एक सेमेस्टर में पढ़ाई करनी होती है. 12 क्रेडिट्स मिनिमम करने, रफली 3 to 4 सब्जेक्ट्स आपके, अगर आप एज्यूम कर रहे हैं कि अगर एक सब्जेक्ट 3 क्रेडिट्स का है, तो आपको 4 सब्जेक्ट्स आपको एक सेमेस्टर में पढ़ाई करने हैं. इंडिया में तो अब बच्चे 5-5, 6-6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एक सेमेस्टर में. एक पूरे साल में अगर आप बात करें, साल में मतलब एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो पूरे साल वो 5-5, 6-6 सब्जेक्ट्स पढ़ाई करते हैं. तो आप वही सेमेस्टर वाइज आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके क्रेडिट्स आपको 12 क्रेडिट्स लेने हैं. तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो वहाँ आके आपकी पे होती है. तो जब आपका ये फाइनलाइज हो जाता है एजुकेशन प्लान, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्यूशन फीस पे करते हैं. तो आपकी जो भी ट्यूशन फीस है, तो मैंने आपको $8,000 बताई है 24 क्रेडिट्स के लिए. तो अगर आप उसको हाफ कर दे तो $4,000 आपकी रफली पड़ गई 12 क्रेडिट्स के लिए. तो आपकी जो ट्यूशन फीस भी है वो भी आपकी कोई साल की नहीं पे होती है, और कोई आपको इन्वेस्टमेंट, आपको कोई पहले से डिपॉजिट नहीं करना है, या आपको कोई यहाँ से फ़ीस नहीं पे करनी है. तो जब आप वहाँ जाते हैं, आपकी ट्यूशन फ़ीस आप अपने सब्जेक्ट वाइज, जो भी आप सब्जेक्ट्स एनरोल करते हैं, चाहे आप 4 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं या 5 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, अगर आप 5 सब्जेक्ट्स करते हैं तो आप 15 क्रेडिट्स के करीब आप अर्न करते हैं. तो जितना मतलब आपको 60 क्रेडिट्स लेने हैं 2 साल में. तो अगर आप so इसका मतलब ये है कि यू हैव टू अर्न 30 क्रेडिट्स इन अ ईयर एंड 15 क्रेडिट्स इन 1 सेमेस्टर. तो मीनिंग दैट यू हैव टू स्टडी मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. तो 5 सब्जेक्ट्स की रफली फ़ीस वही आपकी मैंने बताया, बिटवीन $4,800 to $5,000 आपकी पड़ती है. अगर आप 12 क्रेडिट्स लेते हो तो आपकी फ़ीस $4,000 पड़ती है. अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें इंडियन करेंसी से, तो रफली 3 लाख रुपये पड़ रही है फ़ीस. तो आपको फाइनेंशियली भी आपको बर्डन नहीं है, आपकी फ़ीस आपकी सेमेस्टर वाइज जाते जा रही है. तो आपके पेरेंट्स को रफली $4,000-5,000 हर सेमेस्टर में आपको पे करने हैं, वो इंडिया से ट्रांसफ़र करेंगे. और आपकी, जैसे मैंने अकोमोडेशन बताया, US को इतना एक्सपेंसिव नहीं है. अगर हम बात करें आपकी मील प्लान्स, अगर आप अपार्टमेंट शेयर कर लेते हैं वहाँ पे, वो भी आपको रफली $800 to $1,000 में मिल जाता है. मैं एक डिसेंट क्वालिटी साइज़ आपका स्टैंडर्ड लिविंग की बात कर रहा हूँ. सो वेयर इन यू कैन शेयर एन अपार्टमेंट विद 4 अदर फ्रेंड्स एज वेल. तो आपको बिटवीन $800 to $1,000 आपका एक महीने का खर्चा है.
ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस भी नहीं हैं. एंड लोकेशन वाइज वी आर वन ऑफ द पॉशेस्ट, वन ऑफ द प्रीमियम लोकेशंस इन कैलिफोर्निया. सेफ्टी वाइज कोई चैलेंजेस वहाँ पे नहीं है, कोई भी वहाँ पे आपको चैलेंजेस नहीं मिलेंगे. तो आपकी लोकेशन, आपकी सेफ्टी, आपका फाइनेंशियल कंडीशंस, आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स, आपका ड्रीम एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का, ये सारे एडवांटेजेस अगर आप कम्युनिटी कॉलेजेस के थ्रू आते हैं. एंड एज आई सेड दैट टर्निंग पॉइंट के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशंस प्रोसेस कर सकते हैं. The advantage is that they will guide you right from the word go in terms of submitting the application, making you apply to our colleges, and then chasing with us in terms of getting your offers in time. Our offer turnaround time is roughly 7 to 10 days. आपको 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको ऑफर मिल जाता है. और जब आप एप्लीकेशन स्टेज में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने हैं, जबकि 10th 12th IELTS जो भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर और फाइनेंशियल्स, आपको जैसे आप वो कर देते हैं तो आपको एक ही गो में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, I-20 मिल जाएगा और गारंटेड लेटर मिल जाएगा प्रोग्रेशन यूनिवर्सिटी का. ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी. उसके बाद टर्निंग पॉइंट विल हेल्प यू विद द वीज़ा स्टेज. आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट्स लेंगे, आपको वहाँ पे एप्लीकेशन के लिए आपको अप्लाई करवा देंगे. And then, as I said, that the US Visa Consulate has opened their services from yesterday, so you don't have to worry on now on the visa interviews as well, appointments. So you can actually take your appointments for October, starting October for the January intake, because अभी जो visa appointments मिल रही हैं बच्चों को, वो सितंबर इनटेक के लिए मिल रही हैं, जो इस फॉल में जा रहे हैं. हमारा अगस्त इनटेक है और हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, हम ऑन कैंपस प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए हमारे कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी फ्लाई नहीं कर रहा है हमारे कैंपसेस के लिए, वो जनवरी ऑनवर्ड्स अपने करेंगे. तो आई रियली थैंक वंस अगेन ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, एंड ऑल्सो द टर्निंग पॉइंट टीम, specifically Mr. Naresh Bharti. So if you have any questions, I'll wait for another 2 minutes and then we can wind up the session. I'll just check if एक क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट का रिगार्डिंग द गैप्स, कि बच्चा ने अगर 2016 या 17 में अप्लाई अपनी फिनिश करी है 12th में, या 2018 में रही, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए? येस, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई. वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट. कई बारी क्योंकि हम एंड वी रियली अंडरस्टैंड दैट इंडिया में कई बारी बच्चे 2-2 साल तक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को ट्राई करते रहते हैं क्रैक करने के लिए, स्पेसिफिकली JEE या साइंसेस, अगर मैं लॉ की बात करूँ या अकाउंटिंग से रिलेटेड, या जैसे आपके CA के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गए, आपके नीट के एग्ज़ाम्स हो गए, वहाँ पे बच्चे काफ़ी ट्राई करते रहते हैं, तो कई बारी वो नहीं क्रैक कर पाते हैं. तो वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड दो सिचुएशंस. यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट पार्ट. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में, एंड दे डू नॉट लाइक द यूनिवर्सिटी एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, एजुकेशन एनवायरनमेंट नहीं अच्छा लगता, एंड देन दे स्टार्ट फिगरिंग आउट कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है, या कई बार स्टूडेंट्स स्विच कर जाते हैं स्ट्रीम्स को. तो वी आर एब्सोल्युटली फाइन विद those type of serious and committed students, and we don't have any issues with that. So you can apply. You just have to ensure कि आप एक statement of purpose इस केस में एक प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेयर इन वी नो व्हाट्स योर बैकग्राउंड, आपने क्या किया है पिछले 3-4 साल में. आप उसमें लिख सकते हैं कि आई ट्राइड competing for competitive exams, unfortunately I couldn't get through because इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, टेस्ट एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम होती हैं. सो वी कैन प्रीटी वेल अंडरस्टैंड कि कई बार बच्चे नहीं क्रैक कर पाते हैं, बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर डे अगर आपका दिन उस टाइम पे नहीं अच्छा है, आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर अ बैड स्टूडेंट, you don't have those qualities. It's just that on that particular day you are unable to crack. कई बारी 90% स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th में सिक्योर करते हैं, और कई बारी वो JEE एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पाते हैं, और 70% स्टूडेंट्स क्रैक कर जाते हैं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आप किस चीज़ में फोकस कर रहे हैं, क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, स्टडी ऑफ इंटरेस्ट है. सो वी आर ओके विद दैट एज वेल. So I think there are no more questions, and I really thank once again all of you, and hope and pray that everyone
is safe, in your friends and families as well, immediate family members, and stay safe. And we know that okay, we are going through a very rough situation right now, which is a new normal now, and things. We hope that very soon we will be able to develop the vaccine as well, जो कि अभी news आ भी रही है, but then in the next couple of months we hope that things should be streamlined. एंड वीज़ा काउंसल्स ओपन हो गए, इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट होने ही वाला है, कुछ कंट्रीज़ में आप इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट हो भी गया है. सो एज एंड व्हेन द सिचुएशन इम्प्रूव्स you can fly and then you can start your journey in January onwards, from starting January onwards. Thank you so much and best of luck. Take care. Bye.